important topic, knockout mice. So it is very easy topic, knockout mice. So my dear students, we are learning about the knockout mouse. A knockout mouse is a mouse in which a specific gene has been inactivated or knocked off by a replacing it. So a knockout mouse is a mouse in which a specific gene which a specific gene so this which a specific gene क्या कर रहा है ना has been inactivate of the gene. So that means in a specific gene has been inactivate by replacing it or disturbing with a artificial piece of DNA. Artificial piece of DNA. Piece of DNA. Artificial piece of DNA. So that मतलब क्या कर रहा है ना आप लोगों में आइडेंटिफाई करना चाहिए knockout mice. Knockout mouse is a mouse in a specific gene has been inactivated or knocked out by replacing it. So within an artificial piece of DNA. So यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना the loss of gene inactivate loss of gene inactivate often cause changing in the mouse phenotypic. So gene loss हो गया तो क्या करना mice का body that मतलब phenotype change of the mice. So mice का body क्या करना changing हो गई. So that मतलब क्या कर रहे ना thus the provide so valuable information on the function of the gene. So that's why they can provide the valuable information on the function of the gene. So in this knockout में देखिए next one देखो. So here the knockout gene. So knockout gene में क्या करना ना knockout gene is have for example if they have in the mouse. So knockout mouse is a mouse in which a specific gene inactivate of the gene or replace of the gene or disturb of the gene. So disturb कर रहा है specific gene. So कैसे disturb करना artificial piece of the gene or that artificial piece of the gene is expressed to the phenotype of the mice. So that मतलब mice का gene और mice का phenotype को old phenotype क्या करना replace हो गया वो artificial piece of the DNA. So that's why क्या करना यहाँ पर वो ऐसा हो सकता है. So that मतलब the loss of the gene inactivated. So loss gene हो गया इसलिए क्या करना mice का body का gene क्या करना inactivated. So inactivated हो गया तो वो mice का body कैसा होगा ना phenotypic changing of the mice. So phenotypic changing of the mice keep it your mind. So in this knockout mice का बारे में क्या करना नाम 3 scientists explain किया. So that one these are the 3 scientists. First one Marion R. Sipach. Mario R. Spachi and Sir Martin J. Evans and next Olier Smith. So those are the scientists are first to identify to the knockout mice. So that मतलब those are got to the Nobel Prize in 2007. So 2007 में क्या करना Nobel Prize getting किया Nobel
नोबेल प्राइज दोज पर्सन। सो दैट मतलब माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को वो देखिए, फॉर दिस डिस्कवरी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक जीन मॉडिफिकेशन, वो लोग क्या कर रहे हैं ना, इंट्रोड्यूसिंग ऑफ द स्पेसिफिक जीन मॉडिफिकेशन इन ए माइस। सो माइस में क्या कर रहे हैं ना, स्पेसिफिक जीन मॉडिफिकेशन आइडेंटिफाई किए, वो वाला डिस्कवर किया। सो बाय द यूजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक सेम्टा, embryonic stem cell। सो क्या यूज किया, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल यूज किया। विच एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, माइस का एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल यूज करके। सो इन दिस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में क्या कर रहा ना, स्पेसिफिक जीन, सो स्पेसिफिक जीन मॉडिफिकेशन किया यहाँ पर। सो स्पेसिफिक जीन मॉडिफिकेशन की, इसलिए दोज वर गेट टू द नोबेल प्राइज इन 1900 2007, कीप इट योर माइंड। सो नेक्स्ट वन क्या करना, नॉकआउट माइस कैसे वो कर रहा है। सो लाइक आई विल डिस्कस टू दिस नॉकआउट माइस कैसे वो गेटिंग कर रहे हैं, आई विल डिस्कस यू माय डियर स्टूडेंट्स। सो नॉकआउट माइस कैसे डिस्कस कर रहे हैं, मैं डिस्कस करूंगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स वो सुनिए आप लोगों। So first of all, procedure, we are learning about the procedure, procedure। So procedure में क्या कर रहे हैं आप लोग, सुनिए। So first of all, point number 1, so point number 1 क्या करना, the gene to be knocked out is isolated from mouse gene library। सो माउस जीन लाइब्रेरी में क्या करना ना, नॉकआउट जीन पहले आइसोलेट करना चाहिए। आइसोलेशन ऑफ द जीन, आइसोलेशन। सेकेंड पॉइंट क्या करना, देन ए न्यू डीएनए सीक्वेंस इज इंजीनियर्ड विथ ए वेरी सिमिलर टू ओरिजिनल जीन and its immediately neighbor sequence, expect that it is changing sufficiently to make it imperably। so that मतलब क्या करना है, सेकेंड पॉइंट में वो जीन, so this is isolation of the gene। so in this isolation of the gene क्या करना ना, द न्यू जीन सीक्वेंस इंजीनियर करना चाहिए। इसका साथ में क्या करना, न्यू जीन सीक्वेंस इंजीनियर करिए। सो इंजीनियर करेगा तो क्या करना, वो जीन, न्यू जीन सीक्वेंस इंजीनियर करेगा तो वो जीन क्या करना, नया जीन फॉर्मेशन कर सकता है। सो दैट इज थर्ड पॉइंट। एंड नेक्स्ट वन, थर्ड, दैट इज सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट, फ्रॉम ए माउस मोरल स्टेम सेल्स आर आइसोलेटेड। सो माउस का स्टेम सेल क्या करना, आइसोलेट करना। सो आइसोलेट करने के बाद दीज कैन बी ग्रोइंग इन विट्रो में क्या करना है, डेवलप करना चाहिए वो जीन। विच जीन है, स्टेम सेल्स ऑफ द माउस जीन। सो डेवलप करे, यहाँ पर ग्रोथ कर सकता है वो ग्रीन। सो फॉर एग्जाम्पल so we will take a stem cells from a white mouse। so white mouse का stem cells we are taken there। so white mouse का stem cells। so यहाँ पर क्या करना, the stem cells from 3 steps are combined with the new sequence from a step 2। so stem cells हम लोग क्या करना, we are taken to the stem cells of the white mouse। so white mouse का stem cell, white mouse। सो व्हाइट माउस का स्टेम सेल क्या करना, भैया कलेक्ट किया। सो कलेक्ट करना के बाद क्या करना, द स्टेम सेल्स फ्रॉम स्टेप 3 आर कंबाइनिंग विथ द न्यू सीक्वेंस फॉर द स्टेप 2। सो व्हाइट माउस का स्टेम सेल्स में क्या करना ना, इन विट्रो कल्चर में क्या कर रहा है ना, सो कंबाइंड विथ द न्यू सीक्वेंस। यहाँ पर न्यू सीक्वेंस करेगा तो क्या कर रहा है ना, वो जीन क्या करना ना, चेंजिंग हो कर सकता है। सो नेक्स्ट वन, दैट मतलब क्या करना, वो करना के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं ना, सो व्हाइट माउस स्टेम सेल्स वी आर कलेक्टेड टू द व्हाइट माउस स्टेम सेल्स।
सो इन दिस वाइट माउस स्टेम सेल्स का बारे में क्या करना है, न्यू सीक्वेंस फॉर्म करना चाहिए। वो न्यू सीक्वेंस फॉर्म करने के लिए क्या करना, इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड यूज कर रहे हैं एंड सेलेक्टेड यूजिंग द एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड यूज करेंगे तो वो जीन क्या करना, रिकॉम्बिनेट होकर मतलब न्यू जीन के साथ फॉर्म कर रहा है। इलेक्ट्रोपोरेशन एंड एंटीबायोटिक्स यूज करना चाहिए। सो नेक्स्ट वन नो स्टेप 5। सो स्टेप 5 में क्या कर रहा है ना, द स्टेम सेल्स फ्रॉम स्टेप 4 आर इंसेक्टेड इनटू द माउस ब्लास्टोसिस्ट सेल। सो यहाँ पर क्या कर रहा है ना, स्टेम सेल्स है, stem cells. So stem cells, type of the stem cells, the new gene formation of the stem cells. So in this new gene formation of the stem cells, so inserted into mouse blastocyst cell. So कहाँ पर रखा दिया ना स्टेम सेल, वो स्टेम सेल इज आल्सो विच टाइप ऑफ द स्टेम सेल, न्यू सेल्स और न्यू डीएनए फॉर्मेशन करने के लिए वो स्टेम सेल फॉर्म किया। सो फॉर्म करने के लिए इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड एंड एंटीबायोटिक्स यूज किया। सो दिस सेल क्या कर रहा है ना, दिस सेल इज इंसेक्टेड इनटू द माउस ब्लास्टोसिस्टिक सेल। सो माउस ब्लास्टोसिस्टिक सेल में वो रख दो। सो रखना के बाद क्या करना, ब्लास्टोसिस्टिस और देन implanted to the uterus. So वो ब्लास्टोसिस्ट सेल क्या करना ना, कहाँ पर इंप्लीमेंट होगा ना, यूटेरस में इंप्लीमेंट हो गया। सो इंप्लीमेंट हो गया तो क्या करना ना, इंप्लीमेंट ऑफ द यूटेरस ऑफ द फीमेल। सो फीमेल ब्लास्टोसिस्ट में इंप्लीमेंट हो गया। सो दैट मतलब क्या करना, टू कॉम्प्लीमेंट, दैट मतलब क्या करना, टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रेगनेंसी ऑफ द फीमेल। सो यहाँ पर क्या करना, इंसेक्ट किया कहाँ पर ना, ब्लास्टोसिस्टिक सेल में। वो ब्लास्टोसिस्टिक सेल क्या करना, डेवलप कर रहा है यूटेरस में। सो दैट मतलब यूटेरस ऑफ द फीमेल माउस, सो यूटेरस ऑफ द फीमेल माउस। सो दैट मतलब आप लोग क्या कर रहा है, सो दिस वन आल्सो प्रेगनेंसी माउस, प्रेगनेंसी है वो माउस, प्रेगनेंसी सो प्रेगनेंसी माउस है। तो वो प्रेगनेंसी माउस का क्या कर रहा है, नेटवर्क क्या कर रहा है ना, द ब्लास्टोसिस्टिस कंटेनिंग टू टाइप्स ऑफ द स्टेम सेल्स। सो हियर द ब्लास्टोसिस्टिस ऑफ द प्रेगनेंसी माउस में क्या करना ना, टू टाइप्स। सो टू टाइप्स ऑफ द स्टेम सेल्स आर देयर, स्टेम सेल्स। सो टू टाइप्स ऑफ द स्टेम सेल्स। सो those are the two types of the stem cells। क्या करना, फर्स्ट वन ओरिजिनल स्टेम सेल, सेकेंड वन न्यूली इंजीनियर्ड स्टेम सेल, न्यूली इंजीनियर्ड स्टेम सेल। So newly engineered stem cell, original stem cell, both stem cells is having the blastocyst cell. Here the blastocyst is having uterus of the female. Here the female is pregnancy. Pregnancy के बारे में कितना cells है? 2 cells are there. Keep it your mind. So next one procedure में क्या कर रहा है ना? This one में the newborn mice will therefore the chimera mice. यहाँ पर क्या करना? Pregnancy of the mice है ना? Pregnancy of the mice is will given to born to the mice. So that mice is called newborn mice. Newborn mice. So newborn mice का क्या बोलता ना? Chimerious mice. Newborn mice का क्या बोलता ना? Chimerious mice. The part of their bodies result from original. So this chimerious mice का part of the body क्या करना? Original है. And next one क्या करना ना, ओरिजिनल स्टेम सेल्स है. अदर पार्ट रिजल्ट फ्रॉम द इंजीनियर्ड स्टेम सेल्स आर देयर. सो अदर पार्ट क्या करना ना, ओरिजिनल है. अदर पार्ट ऑफ द माइस आर देयर बिकॉज क्या करना, 2 है ना. सो फर्स्ट वन ओरिजिनल है, सेकंड वन न्यूली इंजीनियर्ड स्टेम सेल है. सो अदर पार्ट ऑफ द स्टेम सेल्स इज
engineered stem cells, keep it your mind. So that मतलब क्या करना है, क्या understanding किया है, the newborn mice are only useful. The newborn mice are only useful if the newly engineered sequence was incorporated into the germ cells. So newborn mice में क्या कर रहे हैं, newborn mice are only useful if newly engineered sequence was incorporated into the germ cells. So वो क्या कर रहे हैं ना, उसका mice में germ cells are there, germ cells. So germ cells क्या कर रहा है ना, incorporate कर रहे हैं, मतलब destroy कर रहे हैं. Which one destroy कर रहे हैं, either egg or sperm. वो cells क्या करना, destroy कर रहा है. Why? Because we are maintained to the newly sequence engineered. So that is a major role. And next one क्या करना ना, cross the new mice other mice के साथ. So here the new mice are the newborn mice. So here the newborn mice क्या करना, cross कर रहे हैं. So क्रॉस कर रहा है अदर माइस के साथ. अदर माइस के साथ क्रॉस करेंगे तो क्या होगा ना, यहाँ पर क्या करना ना, सो वॉच द ऑफरिंग, दे आर ऑल आर द व्हाइट माइस. सो पहले क्या करना, व्हाइट माइस का स्टेम सेल का कलेक्ट किया. सो कलेक्ट करने के बाद क्या करना, व्हाइट माइस का स्टेम सेल्स क्या करना, कलेक्ट करने के बाद वो माइस का स्टेम सेल्स क्या करने, इंसर्ट किया. कहाँ पर है ना, वो अदर फीमेल माइस के साथ. वो फीमेल माइस में क्या करना ना, 2 organelles are there. That is which one, original stem cells and another one newly engineered stem cells. So those are the original and the newly engineered stem cells of the mice, also pregnancy mice. And here the pregnancy mice is give to the birth of the baby, that is a new mice. So in this new mice is the chimeras of the mice. In this mice body is containing the which one, newly engineered part and original part of them. Both are having this mice. So in this mice क्या करना, these mice में क्या करना, so in this newly engineered stem cells is always sterilized germ cells. That is a germ cells, that is a sperms or eggs. So sterilize करेंगे तो क्या करना ना, here the mice, the newly born mice क्या करना, other mice के साथ क्रॉस कर रहे हैं. So क्रॉस करेंगे तो क्या करना, all mice are white color mice, so will get to them. So that मतलब क्या कहना, then further the inbreed the production mice the carry on the functional copy of the original gene. So this one carry करने के लिए वो यूज कर सकता है. आप लोगों को वो सोचना चाहिए. So this one क्या करना, knockout mice में. So knockout mice में क्या कर रहा ना, one mice के बारे में क्या करना, न्यूली mice फॉर्म करने के लिए knockout mice यूज कर सकते हैं. So that मतलब क्या करना, here the knockout mice में क्या करना, transgenic as a knockout mice. Transgenic में knockout mice क्या करना, a transgenic mouse typically expressed one or more copies of the gene. So one or more copies of the genes is expressed to the transgenic mouse that integrated into the genome in the random fashion. So random fashion में क्या करना, one or more than copies express कर रहा है transgenic mouse. But here the knockout mouse में क्या कर रहा है ना, so here the knockout mouse is a mouse in which the both alleles of gene are deleted in target fashion by the homologous recombination. होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन में पहले बोल देना, यहाँ पर न्यूली बॉर्न माउस आर देयर, दिस इज ए नॉकआउट माउस. वो नॉकआउट माउस क्या कर रहा है ना, नॉकआउट माउस क्या करना, होमोलॉगस टारगेट जीन्स क्या करना, डिलीट कर सकते हैं. दैट इज ए पहले मैं बोल दी, स्पर्म्स और एग्स डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वो नॉकआउट माउस. डिस्ट्रॉय करने के बाद क्या करना ना, अदर देन द नॉकआउट माउस दैट सच एज व्हाइट कलर नॉकआउट माउस यूज करने के लिए वो यूज हो गया. दिस वन नॉकआउट माउस आप लोगों को सोचना चाहिए. सो दैट मतलब क्या कहना, नॉकआउट माउस इन नॉक-इन माउस. सो नॉकआउट माउस में क्या होगा ना, नॉक-इन माउस में क्या होगा देखिए. सो यूजफुल व्हेन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डिसीजेस मॉडल. सो नॉकआउट माउस वो वाला दोनों यूज करेगा तो क्या करना ना, यहाँ पर डिसीजेस मॉडल ऑब्जर्व कर सकता है एंड होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन यूज कर सकता है एंड नॉकआउट इन विच इज ए जीन और पार्ट ऑफ द जीन इज डिलीट कर सकता है. सो नॉक-इन इज ए रिप्लेसमेंट ऑफ द जीन, रिप्लेसमेंट कर सकते हैं वो नॉकआउट में. उसमें आप लोगों को सोचना चाहिए. द इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉकआउट माउस इन द बायोलॉजिकल मेडिसिन. सो इम्पोर्टेंस क्या है नॉकआउट माउस में. सो इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉकआउट माउस. सो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर देखो. सो फर्स्ट वन इम्पोर्टेंट नंबर 1. सो इम्पोर्टेंट नंबर 1 प्रोवाइड्स ए
valuable information about the function of a gene. So knockout mouse के important क्या करना ना, valuable information provide कर सकता है, point number 1. So point number 2, genes are common between human and mouse. So वो knockout mouse का gene and human gene common है, but knockout mouse gives the research information about the function of the human genomic. So knockout mouse use करेगी तो उसका gene use करेगी तो human genome easily function कर सकता है, वो लोग हम सोचिए. So next one क्या करना, useful in studying and modeling different kinds of the knockouts. वो नॉकआउट माउस में क्या करना ना, हम लोग स्टडी करने के लिए, नेक्स्ट मॉडलिंग डिफरेंशिएशन डिफरेंट काइंड्स यूज करने के लिए वो नॉकआउट माउस यूज कर सकता है. सो दैट मतलब क्या क्या स्टडी करने के लिए, कैंसर स्टडी करने के लिए, ओबेसिटी स्टडी करने के लिए, नेक्स्ट हार्ट डिजीज स्टडी करने के लिए, डायबिटीज स्टडी करने के लिए, आर्थराइटिस स्टडी करने के लिए, एंजाइटी स्टडी करने के लिए, एंड नेक्स्ट वन क्या करना, पार्किंसन डिसीज स्टडी करने के लिए वेरी वेरी यूजफुल टू द नॉकआउट माउस. आप लोगों को नॉकआउट माउस के बारे में वो लिखना चाहिए. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स.